آج میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان وہ جو راہ پوچھتے ہیں اور وہ جو راہ بتاتے ہیں کے تحت کچھ وقت گزارنا چاہوں گا۔ وہ جو راہ پوچھتے ہیں اور وہ جو راہ بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بے مقصد بھٹک رہے ہیں کیونکہ وہ زندگی کی راہ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ وہ نہیں جانتے کہ کس لیے جینا ہے یا ان کی زندگی میں کوئی اہداف نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک دنیاوی اظہار بیان ہے، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں مر نہیں سکتا۔ چونکہ وہ راہ نہیں جانتے اس لیے وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اگر ہم راہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو زندگی بامانی بن جاتی ہے اور ہم واقعی محسوس کریں گے کہ یہ زندگی جینے کے لائق ہے۔ چونکہ لوگ راہ جانے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دوسروں کی نسبت احساس کمتری اور حسد سے بھر جاتے ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے ہوئے وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے وہ دوسروں سے کمتر ہیں اور ایک قسم کا حسد پیدا ہوتا ہے کہ کاش ان کے پاس بھی وہ چیز ہو جو دوسروں کے پاس ہے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ جلد ایسے زمانہ میں پہنچ جاتے ہیں جب وہ بغیر کچھ حاصل کیے آسمان پر بلائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر لوگ جو راہ نہیں جانتے ہم سے سمت پوچھیں تو ہمیں انہیں کیا بتانا چاہیے؟ فرض کریں کہ کوئی شخص جو راہ جانے بغیر بھٹک رہا ہو آپ کے پاس آ کر کہے مہربانی سے مجھے بتائیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں آپ انہیں کون سی راہ اختیار کرنا سکھائیں گے؟ کتاب مقدس اور انبیاء ان لوگوں کو راہ سکھاتے ہیں جو اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ یرمیاہ نبی، یسایہ نبی اور حزقیل نبی جیسے بے شمار نبیوں کے ذریعے خدا نے ٹھیک ٹھیک بنی آدم کو وہ راہ بتائی ہے جو انہیں اپنی زندگیوں میں اختیار کرنی چاہیے۔ ہم سب کو درست طور پر جاننا چاہیے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے اور لوگوں کو قطعی طور پر یہ سکھانی چاہیے۔ کیا ہمیں نہیں سکھانا چاہیے؟ اگر ہم خود راہ نہیں جانتے تو ہم یقیناً دوسروں کی قیادت نہیں کر سکتے، دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتے اور دوسروں کو راہ نہیں بتا سکتے۔ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ میں سیون کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے خلوص دل سے کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگ بنے جو پوچھنے والوں کو راہ بتا سکتے ہیں۔ تو پھر راہ پوچھنے والوں کو نبیوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے متفقہ طور پر ان کی رہنمائی اس راہ پر کی جس نے ان سب کو خدا تک پہنچایا۔ کھوئے ہوئے اور بھٹکنے والوں کو کتاب مقدس اور انبیاء ہمیشہ اس راہ کے متعلق یہ کہتے ہوئے درست جواب دیتے ہیں کہ واقعی خدا اس راہ کی آخری منزل ہے جسے تمہیں تلاش کرنا ہے، یہی آخر ہے۔ یسایہ باب 40 میں یسایہ نبی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والے خدا پر ایمان رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ہمیں یہ حقیقت سکھاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم یسایہ باب 40 سے دیکھتے ہیں۔ آئیں یسایہ باب 40 آیت 9 اکٹھے دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی نے یہ جواب اس شخص کو دیا جس نے راہ کے لیے ہدایت مانگی تھی۔ باب 40 آیت 9، اے سیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار اور مت ڈر۔ یہودا کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا۔ کورین کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو اپنا خدا، لیکن انگریزی کتاب مقدس میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے یہ ہے تیرا خدا۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو یسایہ نبی خدا کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ آیت 11، وہ چوپان کی مانند اپنا گلا چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ گمشدہ اور بھٹکے ہوئے ایک شخص نے یسایہ نبی سے پوچھا میری زندگی کی منزل کیا ہے اور مجھے اسے کیسے گزارنا چاہیے؟ میں اس وقت بہت کھویا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔
मुझे किसके लिए जीना चाहिए और हकीकी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे कैसे जीना चाहिए। यसाया नबी का जवाब यसाया बाब 40 आयत 9 तक 11 में मिलता है। इस पैगाम के जरिए कि देखो अपना खुदा, यसाया नबी उसे जवाब दे रहा है। खुदा को ढूंढना दुरुस्त तौर पर उस राह को ढूंढने का तरीका है जिसे आपने खो दिया है। हिकमत के बादशाह सुलेमान से भी यही सवाल पूछा गया था। अपनी जिंदगी में जब से मैं खो गया हूं, मैं भटक रहा हूं। हकीकी जिंदगी गुजारने और बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए मुझे कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए। हिकमत के बादशाह सुलेमान ने क्या कहा था? खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। ये राह खो जाने के लिए नहीं बल्कि अब्दी जहान में दाखिल होने के लिए है, जिसे खुदा ने आपके लिए चुना है। उसने ये जवाब दिया था। आए इसकी तस्दीक वाइस बाब 12 से करते हैं। आए वाइस बाब 12 आयत 13 से देखते हैं। बाब 12 आयत 13। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। गुमशुदा शख्स ने सुलेमान से पूछा था और अब वाइस बाब 12 आयत 13 और 14 में जवाब दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में कहीं भी देखें या जिस भी नबी से हम हिदायत मांगे, हम देख सकते हैं कि तमाम अंबिया हमें खुदा की तरफ ले जा रहे हैं। यसाया नबी, यिर्मयाह नबी और हिजकिय्याह नबी सब ने हमें सिखाया कि हमें खुदा के तालिब होना और खुदा से डरना चाहिए। आप सब, क्या हम वो रूहें नहीं हैं जिन्होंने आसमान पर गुनाह किया था और इस दुनिया में फेंक दी गई थीं? इसलिए बगैर भटके हमें बख्शी गई जिंदगी को जीने और इसे दुरुस्त अंदाज से गुजारने का तरीका खुदा को ढूंढना है। किताबें मुक़द्दस और अंबिया हमें मुस्तकिल तौर पर सिखाते हैं, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। आए हम यही सवाल यिर्मयाह नबी से पूछते हैं। जिंदगी की वो राह कौन सी है जिस पर बनेनो इंसान को चलना चाहिए? मुझे कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए? चूंकि मैं भटक रहा हूं, इसलिए मेहरबानी से मुझे राह बताएं। और यिर्मयाह नबी ने यिर्मयाह बाब 31 में यह जवाब दिया है। आए यिर्मयाह बाब 31 आयत 31 से देखते हैं। बाब 31 आयत 31। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब है कि खुदा को ढूंढो जो नया अहद कायम करते हैं। आयत 33 देखते हैं। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इस तरह से खुदा अपनी शरीयत तमाम इंसानों को देते हैं जो खोए हुए हैं और भटक रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और ऐसा करने से मैं उन तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा जो उन्होंने आसमान में किए हैं और यहां तक कि उन गुनाहों को जो उन्होंने इस जमीन पर किए हैं। तब मैं उन्हें आसमान की बादशाही में ले जाऊंगा। ये वो जवाब है जो खुदा उन सबको देते हैं जो खोए हुए हैं और राह की तलाश में हैं। आयत 34 देखते हैं। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को यह कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं वो क्या करेंगे, उनकी बद किरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। तमाम नबी दुनिया में राह तलाश करने वाले हर एक को यकसा जवाब देते हैं।
चाहे ये यसाया नबी हो, सुलेमान बादशाह हो, यिर्मयाह नबी हो, हिजकिय्याह नबी हो, सफनिया नबी हो, जकरिया नबी हो या मलाकी नबी हो, आप देखेंगे कि उन सब ने एक ही पैगाम बांटा था। खुदा को ढूंढो और उनके पास आओ और उनकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये हमारे जिंदगी गुजारने का अक्लमंदाना तरीका है। वो हमें यूं सिखाते हैं। आप सब, क्या हम में से हर एक की जिंदगी में ऐसा लम्हा नहीं है जब हमें खुदा की तरफ रजू लाना चाहिए? जितनी ज्यादा शानदार जिंदगी होगी, उसका अंजाम उतना ही ज्यादा दुख भरा होगा। इसकी वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा जगहों पर खोए हुए हैं और भटक रहे हैं। हमें ऐसी चीजों से फरेब खाना या गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि हमें इस ज़मीन पर क्यों फेंका गया था। ऐसे जिंदगी गुजारने चाहिए जिसका मकसद आसमान की बादशाही में लौटना हो, और ईमान की ऐसी जिंदगी गुजारें जहां हम इस ज़मीन पर तौबा करते हुए खुदा के फजल को तलाश कर सकें। बाप के ज़माना में हमें खुदा यहोवा को ढूंढना चाहिए, बेटे के ज़माना में यसुम मसीह को, और उल-कुद्स के आखिरी ज़माना में क्या हम में मसीह संग हों और नई यरूशलेम आसमानी माँ यानी रूह और दुल्हन को ढूंढने की हिकमत नहीं होनी चाहिए? अगर हम उन तमाम तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारें जो उन्होंने हमें बख्शी हैं, तो हम हरगिज नहीं खोएंगे, ना भटकेंगे, ना गुमराह होंगे। चूंकि खुदा हमारे दिलों में है, इसलिए हम मायूस, गैर मुस्तहकम और भटकने वाले नहीं बनेंगे। खुदा के बगैर लोग हमेशा खोए और भटकते रहते हैं। वो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें किस किस्म की जिंदगी गुजारनी चाहिए, वो इस ज़मीन पर क्यों पैदा हुए थे और मुस्तकबिल में कौन सी जिंदगी का सामना होगा। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी और खौफजदा भी महसूस करते हैं। जैसे जैसे वो साल ब साल बढ़ते हैं, उनके खौफ में इजाफा होता जाता है। इसलिए आज आपको और मुझे वो लोग बनना चाहिए जो रूह और दुल्हन की राह के मुतलाशी लोगों को सही राह दिखाते हुए उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। आए हम यूहन्ना बाब 14 का जायजा लेते हैं, यह मालूम करने के लिए कि हमें खोए हुए और भटकने वालों को किस किस्म का जवाब फराहम करना चाहिए। आए बाब 14 आयत 4 से देखते हैं। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। तोमा ने उसे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। आयत 6, यसू ने उसे कहा कि वो क्या है? राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। बेटे के जमाना में जब खोए हुए लोग यसू को ढूंढ रहे थे, तो वो उनके लिए क्या बन गए थे? उन्होंने कहा कि वो वही राह है जिस पर बनिनो इंसान को चलना और ढूंढना चाहिए। बाप के जमाना में खुदा यहोवा ही राह थे, सही? रूह कुद्स के जमाना के बारे में क्या कहेंगे? ये फितरी तौर पर रूह और दुल्हन है। पहले हम एक मंजर का जायजा लेते हैं जहां बेटे के जमाना में खोए हुए और भटकने वाले शख्स की यसू ने रहनुमाई की थी। हम अमाल की किताब बाब 16 की तरफ जाते हैं। आए बाब 16 आयत 30 देखते हैं। बाब 16 आयत 30, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? जब दरोगा ने देखा कि कैदखाना की बुनियादें हिल गईं और कैदखाना के सब दरवाजे खुल गए हैं, तो उसने समझा कि सारे कैदी भाग गए हैं। इसलिए वो ऐसा खौफजदा हुआ कि उसने अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने उसे कायल किया कि ऐसा ना करे। देखते हैं कि उन्होंने आयत 29 में क्या कहा। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? दरोगा अब राह पूछ रहा है। आयत 31 में राह सिखाने वालों ने उसकी रहनुमाई किसकी तरफ की थी? उन्होंने उसकी रहनुमाई बेटे के जमाना में निजात दहिंदा यसू की तरफ की थी।
बाप के ज़माना में वो उसे किसके पास ले जाते? वो उसे खुदा यहोवा के पास ले जाते। तो फिर रुलकुद्स के ज़माना के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो उसे नए नाम आंसांग हों और नई यरूशलेम आसमानी माँ यानी रूह और दुल्हन को ना ले जाते? वो उसे यसू के पास ले गए क्योंकि ये बेटे का ज़माना था। आयत 31 दोबारा देखते हैं। उन्होंने कहा, खुदावंद यसू पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जो लोग राह ढूंढ लेते हैं वो ऐसी बेपनाह खुशी का तजुर्बा करते हैं। वो वाकई खुदा को कबूल करने और खुदा से मिलने पर बहुत खुश हैं। उस मंजर को देखते हुए जहां खोए हुए लोग खुदा को जानते हैं, सच्चाई के कलाम के वसीला आसमानी बाप और आसमानी माँ को जानते हैं और अपने दिलों को वसी खोलकर सयून में लौटते हैं, मैंने गहराई से महसूस किया है कि आसमानी बाप और आसमानी माँ वाकई इस ज़माना में वसी पैमाने पर खुशखबरी के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। अमाल बाप 16 में दिए गए बयानात के मुताबिक दरोगा और उसका घराना बपतिस्मा लेने पर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। पौलुस रसूल के वसीला वो सीख सकते थे कि कैसे अपनी जिंदगियों की राह पर दुरुस्त तौर पर चलें। खुदावंद यसू पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जब उनसे राह के बारे में पूछा गया तो राह सिखाने वालों ने मुसलसल जवाब दिया। बाप के जमाने में राह खुदा यहोवा को ले जाती है, बेटे के जमाना में राह यसू को ले जाती है और रुलकुद्स के आखिरी जमाना में राह नए नाम मसीह आंसांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ को ले जाती है। ये वो बात है जिसकी किताब मुक़द्दस में नबूवत की गई है। इसके अलावा क्या इससे हमारा फर्ज पूरा नहीं होता कि खोए हुए बनीनो इंसान की सही राह को रहनुमाई करें? हम मुकाशफा की किताब के बाब 22 में एक और आयत देखते हैं। राह पूछने वालों को सही राह की तालीम देना ऐन किताब मुक़द्दस की हिदायत और तालीम है। आइए बाब 22 आयत 17 देखते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 17। और रूह और दुल्हन कहती हैं, वो क्या कहते हैं? आ। बाप के जमाना में खुदा यहोवा के पास आओ, बेटे के जमाना में यसू के पास और रुलकुद्स के जमाना में आसमानी बाप और आसमानी माँ के पास आओ जो रूह और दुल्हन है। और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। खुदा ने तमाम बनीनो इंसान को मुख्तसर तरीन जवाब दिया था। वो खो गए और भटकते हुए पूछने लगे कि अब से मुझे किस किस्म की राह पर चलना चाहिए? खुदा ने जवाब दिया, रूह और दुल्हन के पास आओ। फिर अपनी जिंदगी उन तालीमात के मुताबिक गुजारो जो वो तुम्हें देते हैं। जब हम किताब मुक़द्दस की तमाम तालीमात पर अमल करते हैं तो हम अपने खोए हुए घर यानी आसमान की अब्दी बादशाही में जा सकते हैं। क्या हम नहीं जा सकते? हमें गुनाहों की माफी के फजल से निजात बख्शते हुए और हमें आसमान में शाही काहिन बनाते हुए खुदा ने हमसे आसमान की बादशाही बहाल करने का वादा किया था। वहां मौत, मातम, दर्द या गम ना होगा, बल्कि सिर्फ अब्दी खुशी की कसरत होगी। हम फिलहाल उस दुनिया में दाखिल होने की गर्ज से मसीह की तालीमात पर अमल कर रहे हैं और उनकी पैरवी कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर रहे हैं? अब हमें इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोगों को बचाना चाहिए जो सही राह को ना जानते हुए बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं।
وہ نہیں جانتے کہ وہ اس زمین پر کیوں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت اس گناہگار دنیا میں کیوں رہ رہے ہیں۔ ایک بار جب وہ باپ اور ماں کے پاس آئیں جو روح اور دلہن ہیں تو وہ سب کو سمجھ آئیں گے۔ خدا ہمیں صرف اپنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، تب ہم ہرگز نہیں کھوئیں گے۔ جن کے پاس باپ اور ماں ہیں وہ کھو نہیں سکتے کیونکہ وہ راہ کو جانتے ہیں اور انہیں راہ مل چکی ہے۔ تو پھر راہ پوچھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جا کر انہیں راہ سکھانے چاہیے جو اس کے طالب ہیں۔ یہ اہم ترین راہ ہے جسے آپ اپنی زندگی میں گنوا رہے ہیں، اس لیے جلدی سیکھیں اور ڈھونڈیں۔ کیا یہی ہماری منادی نہیں ہے؟ ہمارا موجودہ کردار ان لوگوں کو راہ سکھانا ہے جو اس کے طالب ہیں۔ منادی کرنا شاید مشکل لگے، لیکن یہ محض ان لوگوں کو راہ سکھانا ہے جو کھو گئے ہیں، الجھن میں ہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس راہ کو یہ کہتے ہوئے متعارف کروائیں کہ خلوص دل سے توبہ کرو اور خدا کے پاس آؤ اپنے ابدی آسمانی گھر لوٹتے ہیں؟ ساری دنیا سے پرفضل خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم ایک عزم کریں گے کہ اب جب کہ ہم نے راہ ڈھونڈ لی ہے تو ہمیں لوگوں کو راہ سکھانے چاہیے اور مناسب طور پر اپنے خاص کام کو پورا کریں تاکہ ہم اس مبارک سال میں روح کے بہت سے خوبصورت پھل، خوشخبری کے کارکنان پھل اور اچھے پھل پیدا کر سکیں۔ بہت سے لوگ راہ پوچھیں گے۔ اپنے جاننے والے لوگوں سے پوچھیں کہ ہمیں کیوں زندہ رہنا چاہیے۔ لوگوں کی اکثریت یعنی 99.99% لوگ اپنی زندگیاں کھو کر گزار رہے ہیں۔ چونکہ وہ کوئی اور راہ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اکثر لوگ بغیر حقیقی سمت کے محض دوسروں کی نقل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سمت کو ڈھونڈ لیا ہے تو ہمیں انہیں باپ اور ماں تک لے جانا چاہیے۔ کیا ہمیں حزقیل نبی، یرمیہ نبی اور یسایہ نبی کی مانند نہیں بننا چاہیے اور انہیں درست طور پر راہ نہیں سکھانے چاہیے؟ دانیل نبی کی نبوت پر غور کریں۔ وہ ستاروں کی مانند عبدالباد تک روشن ہوں گے۔ کیا باپ اور ماں نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ باپ اور ماں کی آواز کی طرف سے ہم تمام بنے نوع انسان کو پکار کر کہیں کہ روح اور دلہن آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مہربانی سے باپ اور ماں کی پکار کو غور سے سنیں، تب آپ مزید نہیں بھٹکیں گے، آپ مزید تتر بتر نہیں ہوں گے۔ آپ واضح طور پر سمجھیں گے کہ کیا چیز آپ کی زندگی کی رہنمائی راستے سے کرتی ہے۔ آئے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں اور بہت سی روحوں کو خوشی پہنچائیں۔ ہمیں 2000 سال پہلے کی تاریخ پر غور کرنا چاہیے، جب دروگا نے راہ پوچھی اور اسے پا کر بپتسمہ لیا اور خوشی سے بھر گیا۔ اس زمانہ میں ہمیں پولس رسول کی مانند بننا چاہیے۔ اس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ روح القدس کے زمانہ میں ہم کہہ سکتے ہیں، مسیح آنسنگ ہونگ اور آسمانی ماں پر ایمان لائیں، تب آپ اور آپ کا گھرانہ نجات پائے گا۔ کیا ہم سب کو اس طرح سے تعلیم دینے کے مقام پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی دنیا میں لے جانے کے لیے خدا نے ہمیں نئے عہد کی فصح اور 3 وقتوں کی 7 عیدوں کی تمام تعلیمات بخشی ہیں۔ اب وہ سیون میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اس طرح سے دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ راہ سکھانے والوں کو ہرگز کھونا یا بھٹکنا نہیں چاہیے۔ باپ اور ماں جو خود راہ ہیں ہمارے اندر کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا وہ نہیں ہیں؟ بس مجھے امید ہے کہ ہم سامریہ اور زمین کی انتہا تک جوش و خروش سے خوشخبری کی منادی کرنے کی قوت حاصل کریں گے۔ تب ہم خدا سے عظیم برکات اور محبت حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے ساتھ میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔